Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study Unit 2 of the Financial Literacy. This is the part 2 of the video. So let us start. The first topic is the digitization of financial transactions. We all know that nowadays the financial services have been digitalized. All the transactions that we are doing are digitalized, right? So, what is the impact of the digitalization on the financial services? जो evolution है digitalized financial transactions का, that has tremendously affected the financial services, and it has given rise to the automated services. We don't have to wait for going to the bank and accessing the bank services. We can always access the services online. Now, not only the volume and the value of the financial transactions have increased multifold, but the application of latest technological means such as AI, biometrics, big data, distributed ledger technologies like blockchain have paved the way for the innovative and unique means of carrying out the financial services in this finance industry. So अगर हम applications की बात करते हैं, what is the application of this digitization? Right. So first application given is the credit scoring based on the payment data. We all know what is the credit score, right? So credit score is given by the credit rating agencies. Now the credit rating agencies can give the credit score to the individuals or to the business people by tracking their digital payment data. For example, if we open PhonePe, we have always seen, we can see there is an option of credit score, right? So आप इस credit score को click करो और we can find out what is the credit score based on the past payment data, digital payment data. Next is the smart contract. Smart contract में क्या होता है? It reduces the need for the intermediaries. अब अगर दो लोग हैं जिनको आपस में मनी ट्रांसफर करना है, उनके बीच में इंटरमीडियरीज की कोई जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो गई है, फ्रॉड्स मिनिमाइज हो गए हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली एक तरीके से कंप्यूटर कोड्स होते हैं जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन को स्मूथली करने में हमारी हेल्प करते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी चीज का सब्सक्रिप्शन लिया है, राइट, तो हमें एक साल बाद उसकी पेमेंट करनी है, तो आजकल कैसा ऑप्शन चल रहा है? वी कैन ऑटो पे। हम ऑटो पे सेट कर सकते हैं यूपीआई एप्स पे और वो पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, राइट? सो नेक्स्ट इज दी पीयर टू पीयर लेंडिंग। सो पीयर टू पीयर लेंडिंग मीन्स क्या होता है कि अगर हम दो लोग बीच में आपस में कोई मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, सो वन पर्सन हैज द सरप्लस ऑफ द फंड्स and other person has the deficit of funds, so there can be easy transfer between both of them without requiring a bank at an effective rate of interest and terms of conditions. Also, they can decide among themselves, right? अगर हम SWOT एनालिसिस की बात करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ द डिजिटलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो उसके काफी सारे पॉइंट्स हम देख सकते हैं। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये सारी हमें स्ट्रेंथ्स गिवन है, ठीक है, राइट? हम एक्सेस कर सकते हैं डिजिटल पेमेंट्स को कैसे भी। डिजिटल पेमेंट्स काफ़ी सिक्योर होती हैं, टाइम सेविंग होती है, कन्वीनियंट होती है, एफिशिएंट होती हैं। सो ये काफ़ी सारी स्ट्रेंथ वी कैन राइट। एंड हम ये वाली स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं, लाइक फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिबिलिटी, सेकेंड इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पैरेलल इकोनॉमी की करप्शन जो है वो पैरेलल इकोनॉमी में जो होता था कैश बेस्ड इकोनॉमी में, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। सिंप्लीफाइड पेमेंट सिस्टम है, काफ़ी कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। देयर आर मल्टीपल पेमेंट ऑल्टरनेटिव, सेफ है, और सिंगल प्लेटफॉर्म पे हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक सिंगल यूपीआई ऐप पे हम इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, वी कैन पे ऑल्सो। सो काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये सारी हो गई स्ट्रेंथ्स ऑफ द डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम वीकनेस की बात करते हैं तो काफी सारी वीकनेस यहाँ पे देखने को हमें मिलती है, जैसे कि फर्स्ट है डिलेड ट्रांजैक्शंस ड्यू टू सम नेटवर्क इशू और ड्यू टू सम टेक्नोलॉजिकल इशू, डिलेड ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। साइबर क्राइम्स आजकल बढ़ गए हैं। डिजिटल लिटरेसी होना जरूरी है फॉर यूजिंग द डिजिटल सर्विसेज और द फॉर एक्सेसिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट इज द ट्रांजैक्शन लिमिट। द ट्रांजैक्शन लिमिट इज अप टू 1 लाख पर डे, ठीक है? अगर हम देखें तो हर एक यूपीआई ऐप की ट्रांजैक्शन लिमिट अलग अलग होती है। सो ये भी एक वीकनेस है कि हम एक बार में ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बैंक पे ही जाना पड़ेगा।
अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो इसका काफी ज्यादा स्कोप है सर्विस का। इवन स्मॉल जो वेंडर्स होते हैं वो भी ये यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स हो जाते हैं यहाँ पे डिजिटली। हम यूपीआई के थ्रू बैंक से किसी भी बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड आवर इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स द कैशलेस इकोनॉमी बिकॉज ऑफ दिस। उसके अलावा काफी सारे इनोवेटिव बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हैं जो यूपीआई या फिर डिजिटाइजेशन की वजह से आजकल हो रहे हैं। इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हम कोई पेटीएम पे लेट सपोज पेमेंट कर रहे हैं तो पेटीएम व्हाट इट डज इज हमें पॉइंट्स देता है। हर एक पेमेंट के अगेंस्ट या तो हमें कैशबैक मिलता है या तो पॉइंट्स मिलते हैं, जिनको हम रिडीम करके कुछ अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं ऑन अ डिस्काउंट। लास्टली स्ट्रेंथेंड बैंकिंग नेटवर्क बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन। जो बैंकिंग नेटवर्क है पूरा इंडिया का, जितने भी बैंक्स हैं दे आर लिंकिंग देमसेल्व्स। ठीक है, आपस में ये लोग लिंक हो रहे हैं एंड जो बैंकिंग नेटवर्क है वो काफी स्ट्रेंथन हो रहा है। अगर हम थ्रेड्स की बात करें तो आज भी लोग ऐसे हैं जो कैश प्रेफर करते हैं, जो फोन प्रेफर नहीं करते कि हम डिजिटाइज वे में हम पेमेंट करें। अवेयरनेस बहुत लोगों को नहीं है, स्पेशली इन द रूरल एंड द रिमोट एरियाज। सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है ये पूरी की। नेक्स्ट इज द इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज सब कुछ डिजिटाइज हो गया है। इसकी वजह से काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई है, राइट। क्योंकि आजकल सब कुछ एआई के थ्रू हो जाता है, आजकल सब कुछ बिग डेटा के थ्रू मैनेज हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए लोग नहीं चाहिए हमें। पहले मैनुअल वर्क होता था तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई है। सो दिस इज द स्वॉट एनालिसिस। उसके अलावा वी हैव टू स्टडी डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव्स। अब डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव्स क्या है कि पहले जो अगर हम देखते हैं इंडिया जो थी कैश बेस्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। अब वो मूव कर रही है टुवर्ड्स दी कैशलेस इकोनॉमी। सो यहाँ से उसको यहाँ तक पहुंचाने में काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। तो पहला है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक टाइप की क्रेडिट फैसिलिटी होती है जो हमें बैंक्स प्रोवाइड करती हैं, ताकि जो कस्टमर्स हैं बियॉन्ड अपनी क्रेडिट लिमिट वो लोग बोरो कर सकते हैं फंड्स। ठीक है, अगर किसी के पास भी क्रेडिट कार्ड है तो हम उसमें से फंड्स बोरो कर सकते हैं। और कितने फंड्स बोरो कर सकते हैं, किस लिमिट्स तक बोरो कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा या इंडिविजुअल्स का या बिजनेस वाले लोगों का कितना क्रेडिट स्कोर है। तो इसमें क्रेडिट स्कोर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो हमारी क्रेडिट लिमिट भी अच्छी होगी। एंड ऑल्सो फिर हमें उसके अलावा काफी सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं, राइट। फिर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अगर हम देखते हैं, क्रेडिट कार्ड में एक क्रेडिट कार्ड नंबर होता है। अब ये जो क्रेडिट कार्ड नंबर होता है ये होता है एक 16 डिजिट का नंबर। कार्ड होल्डर का नाम होता है, एक्सपायरी डेट होती है, सिग्नेचर होता है, सीवीसी कोड होता है जो कि सीक्रेट रखना होता है, हमें किसी को बताना नहीं होता। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द क्रेडिट कार्ड इज दैट इट इज नॉट लिंक टू द बैंक अकाउंट। ये हमारे बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, तो जब भी हम इसको स्वाइप करेंगे तो जो अमाउंट डिडक्ट होगा वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट में से डिडक्ट होगा, हमारे बैंक अकाउंट में से नहीं होगा, राइट। और उसके जो ये क्रेडिट कार्ड है वो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, आजकल हर जगह फैसिलिटी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट इज दी डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भी पेमेंट कार्ड्स होते हैं बट अनलाइक जो क्रेडिट कार्ड उसमें एक लिमिट होती है, राइट। क्रेडिट लिमिट होती है कि हम फंड्स को बोरो कर सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या है कि अगर हमारे बैंक अकाउंट में इतने जितने पैसे हैं हम उतना ही इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड की वजह से हो क्या गया है, हमें कैश कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। वी कैन यूज डेबिट कार्ड एट द एटीएम्स टू विड्रॉ द कैश। एंड यहाँ पे हम इसको इसके थ्रू परचेज भी कर सकते हैं कहीं पे भी। अब अगर हम डेबिट कार्ड को देखें तो डेबिट कार्ड में एक बैंक की ब्रांडिंग होती है, जिस भी बैंक का वो कार्ड है। यहाँ पे एक स्मार्ट चिप भी होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कार्ड नंबर है, कार्ड होल्डर का नेम होता है, पेमेंट लोगो होता है जैसे कि रुपए होता है, वीजा होता है, एक्सपायरी डेट उसमें लिखी होती है। और जब भी हम डेबिट कार्ड को यूज करते हैं फॉर समथिंग, फॉर परचेजिंग, उसके लिए एक हमें पिन रिक्वायर्ड होता है। लेकिन कुछ परचेजेस ऐसी भी होती हैं जिसमें पिन की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज द आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS।
सो आधार enabled पेमेंट सिस्टम एक बैंक लेड मॉडल है which allows the online interoperable financial transaction at the point of sale. मतलब यहाँ पे हम किसी भी एक एटीएम में जाकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं यूजिंग द आधार कार्ड ओनली, लेकिन यहाँ पे हमें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की जरूरत होती है ताकि वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे आधार को ऑथेंटिकेट कर सके कि ये आधार वैलिड है। अब उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? एक तो हमारे पास हमारे घर के आसपास एटीएम होना चाहिए, हमें अपने आधार कार्ड का नंबर पता होना चाहिए, हमें अपने बैंक का नेम पता होना चाहिए, एंड हमें वहां पे अपने बायोमेट्रिक्स के साथ जाना होता है, बिकॉज जो आधार कार्ड होता है उसमें हमारी फिंगरप्रिंट्स होते हैं एंड आइरिस स्कैन होता है, राइट? सो हमें वहां पे ट्रांजैक्शन करने के लिए खुद ही जाना होता है, अगर हमारा आधार कार्ड है तो हम ही जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज द नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं या फिर ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं, ई बैंकिंग भी इसको कहते हैं। सो यहाँ पे होता क्या है, इट इज अ फैसिलिटी दैट इज ऑफर्ड बाय द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिससे कस्टमर्स कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीन टाइप्स के ट्रांसफर होते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस। एनईएफटी मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एंड आईएमपीएस का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। सो ये तीनों ही नेट बैंकिंग के टाइप्स हैं, इन तीनों से ही फंड ट्रांसफर हो सकता है, बट इनमें डिफरेंसेस क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एनईएफटी की बात करते हैं तो एनईएफटी में मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू ₹1 होती है। हम 1 रुपए से लेकर कितनी भी लिमिट तक पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस में ये स्टार्ट होता है 2 लाख से। अगर 2 लाख से हमें कम ट्रांसफर करना है, मनी ट्रांसफर करना है, तो हम आरटीजीएस यूज नहीं कर सकते। एंड आईएमपीएस की अगर हम बात करते हैं तो ये भी ₹1 से स्टार्ट होता है, इसकी लिमिट होती है अप टू 2 lakhs। एंड एनईएफटी आरटीजीएस में कोई लिमिट नहीं होती है। पेमेंट ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो एनईएफटी आरटीजीएस जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है, आईएमपीएस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होता है। सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो एनईएफटी आर्ली बेसिस पे सेटलमेंट करता है, हर घंटे सेटलमेंट होती है। आरटीजीएस में रियल टाइम सेटलमेंट है कि अगर मैंने अभी भेजा है तो जिसको मैंने भेजा है उसके अकाउंट में इसी वक्त ट्रांसफर हो जाएगा। आईएमपीएस भी रियल टाइम पे ही काम करता है। अगर हम ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करते हैं तो एनईएफटी में कोई चार्जेस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, आरटीजीएस में भी सेम है, कोई चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन आईएमपीएस में इंडिविजुअल बैंक जो है वो डिसाइड करता है कि कितना नॉमिनल चार्ज लेना है, जो कि वेरी करता है। 2% ₹2 हो सकता है ये चार्ज, कभी ₹5 होता है। तो एक परसेंटेज, एक प्रपोर्शनेट अमाउंट होता है जो कि नॉमिनल चार्ज की तरह बैंक चार्ज करता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फीचर्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, तो हम अपनी अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, हम एफडी अकाउंट खोल सकते हैं, हम यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं, वी कैन मेक द मर्चेंट पेमेंट्स कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं फंड्स, चेक बुक ऑर्डर कर सकते हैं, इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, और ये तो काफी कम है, हम ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू काफी सारी चीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, ठीक है? तो काफी सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूपीआई। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक पेमेंट सिस्टम एप्लीकेशन होता है, ऐप होता है जो कि हमें अलाउ करता है टू ट्रांसफर मनी बिटवीन द बैंक अकाउंट्स बाय यूजिंग मोबाइल फोन्स। ऑल द बैंकिंग फीचर्स आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल विंडो मोबाइल पेमेंट सिस्टम। मतलब जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज है वो एक मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन में हमें देखने को मिल जाती है। अब ये यूपीआई बनाया किसने था? एनपीसीआई ने, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई एक सिंप्लीफाइड ट्रांजैक्शन होती है थ्रू यूजिंग क्यूआर कोड्स एंड यूपीआई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स। तो होता क्या है, यूपीआई यूज करने के लिए वी हैव टू हैव अ बैंक अकाउंट, हमें हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए,
एंड अगर हमारे पास बैंक अकाउंट है देन वी आर गुड टू गो। यूपीआई एप्स काफी सारे होते हैं, फोन पे है, पेटीएम, गूगल पे, बहुत सारे टाइप से एप्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद वी हैव टू इंस्टॉल दिस ऐप एंड हमें अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी होती है इसमें, जिसके बाद हमारे पास एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्रिएट हो जाता है जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ यूपीआई। इट इज अ यूनिक सिस्टम जो ट्रांसफर करने के लिए, फंड्स ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। काफी फास्ट पेमेंट यहाँ पे मैकेनिज्म देखने को मिलती है, कोई फीस और चार्ज यहाँ पे नहीं होती है, मिनिमम लिमिट कोई नहीं होती है बट मैक्सिमम यस होती है। यूपीआई हैज अ ऑप्शन ऑफ ऑटो पे, यहाँ पे ऑटो पे भी होता है ताकि हम जो यूटिलिटी बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, वो रेगुलर ऑटो पे हो जाए, उसका वो भी हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। और ऑटो पे कैन बी कैंसिल्ड एनी टाइम। देयर इज ऑल्सो अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसकी वजह से सिंगल क्लिक पेमेंट्स इजी हो जाती हैं। नेक्स्ट इज द डिजिटल वॉलेट्स। डिजिटल वॉलेट या फिर ई वॉलेट एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन को सिक्योरली स्टोर करता है। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? उनकी पेमेंट इंफॉर्मेशन, कहाँ कहाँ उन्होंने पेमेंट करी है, क्या उनके पासवर्ड्स हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं, तो ये सारी चीजें ये डिजिटल वॉलेट सेव करते हैं। और डिजिटल वॉलेट्स यूज करने से यूजर्स जो हैं अपनी परचेजेस को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं विद नियर फील्ड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्गर पासवर्ड्स रख सकते हैं ताकि हम साइबर क्राइम से बच सकें विदाउट एनी वरी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे टाइप के डिजिटल वॉलेट्स, गूगल पे, मास्टर पास, भीम, अमेजोन पे, पेटीएम, फोन पे, योनो, एसबीआई का जो होता है, मोबिक्विक, तो काफी सारे हमने यहाँ पे सुने हुए हैं ये नाम। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉन्जी स्कीम्स। तो पॉन्जी स्कीम्स होता क्या है? पॉन्जी स्कीम एक तरीके की फ्रॉडलेंट इन्वेस्टिंग स्कैम, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्ट करो एंड वी विल गिव यू हाई रेट्स ऑफ रिटर्न विद लिटिल रिस्क। अब यहाँ पे जो कंपनीज है या जो इंडिविजुअल्स है जो पॉन्जी स्कीम में एंगेज करता है, वो सारी अपनी एनर्जी उसमें लगा देती है कि हमें नए क्लाइंट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि अगर नए क्लाइंट्स नहीं होंगे इनके पास तो इनकी स्कीम जो है वो बिल्कुल चल ही नहीं पाएगी। पॉन्जी स्कीम एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है जिसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ये लोग पे करते हैं। कहाँ से पे करेंगे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को? इनको तो बोल दे कि हम तुम्हारे पैसे डबल करेंगे, बट एग्जिस्टिंग वालों को ये पे करते हैं बाय द फंड्स ऑफ द न्यू इन्वेस्टर्स। पॉन्जी स्कीम के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप हमारे पास इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे, कोई रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन काफी सारी पॉन्जी स्कीम्स में फ्रॉडस्टर्स इन्वेस्ट ही नहीं करते मनी, वो आपके पैसे सिर्फ कलेक्ट करते हैं, दे डू नॉट इन्वेस्ट। एंड अगर आपको रिटर्न देना है ईयरली तो वो क्या करेंगे, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसे लेके आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है, जिससे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके पैसे जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। And with little or no legitimate earnings, Ponzi scheme require constant flow of new money. अगर उनके पास न्यू मनी का कांस्टेंट फ्लो नहीं है तो ये स्कीम जो है वो कोलैप्स हो जाती है। पॉन्जी का नाम मिला था चार्ल्स पॉन्जी के बाद, जिसने 1920s में काफी सारे इन्वेस्टर्स को ड्यूप किया था विद अ पोस्टेज स्टैम्प स्पेकुलेशन स्कीम जो कि उन्होंने चलाई थी। अब चार्ल्स पॉन्जी से पहले भी काफी ऐसे लोग थे जो ये पॉन्जी स्कीम चलाते थे, बट फेमस इसको चार्ल्स पॉन्जी ने किया था, इसीलिए यहाँ पे हम चार्ल्स पॉन्जी का नाम लेते हैं। उसके अलावा बर्नर्ड मैडॉफ नाम के इंसान ने भी एक पॉन्जी स्कीम चलाई थी काफी टाइम तक, जो कि काफी फेमस हुई थी। इंडियन अगर पॉन्जी स्कीम की हम बात करें तो इंडियन पॉन्जी स्कीम हुआ था बाय अमित भारद्वाज। अब नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ द पॉन्जी स्कीम। यहाँ पे हमें प्रॉमिस किया जाता है कि हाई रिटर्न मिलेगा, लिटिल रिस्क लेना पड़ेगा, कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ रिटर्न्स होते हैं रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट कंडीशंस। चाहे मार्केट बूम में है, चाहे मार्केट डाउन जा रही है, कैसे भी जा रही है, हमें यहाँ पे कांस्टेंट फ्लो ऑफ रिटर्न्स का प्रॉमिस किया जाता है। ऐसी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं होती। जो भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड होता है, जो भी सेबी होता है, उस पे ये रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सीक्रेट होती हैं और काफी कॉम्प्लेक्स बताया जाता है कि आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसके बारे में, यू जस्ट इन्वेस्ट। क्लाइंट्स जो हैं उनको ऑफिशियल पेपर वर्क नहीं दिखाया जाता, तो ये काफी फीचर्स हैं। और ये एक रेड फ्लैग्स की तरह भी हम इनको देख सकते हैं
जिससे पता चलता है कि हमें ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, व्हाट आर द प्रिकॉशंस अगेंस्ट द पॉन्जी स्कीम? सबसे पहले, इन्वेस्टमेंट एडवाइस हमें सिर्फ ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की ही फॉलो करनी चाहिए। हमें सस्पिशियस रहना चाहिए अनसॉलिसिटेड ऑफर्स से, ऐसे ऑफर्स से जो कि हमें हाई रिटर्न दे रहे हैं विद लिटिल रिस्क। थर्ड इज, हमें जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोग इस टर्म्स एंड कंडीशंस को स्किप कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। फोर्थ इज आस्क क्वेश्चंस। अगर हमें इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वी हैव टू आस्क। एंड लास्टली, वी हैव टू रिपोर्ट एनी स्कैम जो हमारे आसपास हो रहा है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दी ऑनलाइन फ्रॉड्स। ऑनलाइन फ्रॉड्स बेसिकली कौन से फ्रॉड्स होते हैं? जो कि इंटरनेट के थ्रू होते हैं। अब ये जो इंटरनेट के थ्रू होते हैं, ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी हो सकते हैं, या हो सकता है इम्पर्सनेशन थ्रेफ्ट, इम्पर्सनेशन फ्रॉड्स भी होते हैं, जिन्हें हम आइडेंटिटी थेफ्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म है फिशिंग। फिशिंग एक टाइप का ईमेल स्कैम होता है, ठीक है, जहाँ पे हमें अनसॉलिसिटेड मैसेजेस आते हैं और उन मैसेजेस में एक अननोन लिंक होता है। अब होता क्या है कि अगर हम उस अननोन लिंक को क्लिक करते हैं तो वो हमें डायरेक्ट करता है टू अ फेक वेबसाइट। एंड उस फेक वेबसाइट के जरिए ये जो अटैकर्स होते हैं, फिशिंग अटैकर्स होते हैं, दे गेन सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे यूजर नेम्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, जो भी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन होती है, या फिर हमारे नेटवर्क क्रेडेंशियल्स होते हैं कि हम कौन सी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये लोग स्टील करते हैं, राइट। और फिशिंग के अलावा कुछ और स्कैम्स होते हैं जो फिशिंग की तरह ही होते हैं, जैसे स्मिशिंग एंड विशिंग। स्मिशिंग एक तरीके का एसएमएस स्कैम होता है, एंड जो विशिंग होता है, दिस इज डन थ्रू अ फोन कॉल। जैसे फिशिंग ईमेल के थ्रू होता है, स्मिशिंग एसएमएस के थ्रू होता है, एंड विशिंग फोन कॉल्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग और स्किमिंग। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग में ये हमारे क्रेडिट कार्ड्स का अटैकर्स क्लोन बना देते हैं। अब इसमें होता क्या है स्किमिंग में, कि जो भी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है ये लोग हमारी कॉपी करते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अ सॉफ्टवेयर, और फिर उस इंफॉर्मेशन को स्टोलन कार्ड में ये लोग ट्रांसफर करते हैं, उसका नया कार्ड बनाते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग कार्ड को ही रीराइट करते हैं विद दैट स्टोलन इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑनलाइन फ्रॉड। तो हम ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले हमें उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अवेयर ही नहीं है, अगर हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है, तो हम उससे बच ही नहीं सकते। जैसे फिशिंग है, स्पूफिंग है, पॉपअप फ्रॉड्स होते हैं, जो कि हमारे लैपटॉप्स वगैरह पे जब हम कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं तो ऐड आती है, पॉपअप्स आते हैं, अगर हम उसको क्लिक करते हैं तो वो भी गलत है, वो भी एक टाइप का फ्रॉड है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्स। ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो हमारे की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करते हैं, हम कैसे कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके थ्रू हमारा पासवर्ड जो है वो स्टील कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है काउंटरफीट वेबसाइट्स। ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि फ्रॉड होती हैं, फेक वेबसाइट्स होती हैं, और हमें ऐसा लगेगा बिल्कुल रियल वेबसाइट्स है, बट एक्चुअली में ये फेक होती हैं। नेक्स्ट, एक्टिवेट पॉपअप विंडो ब्लॉकर। पॉपअप्स को ब्लॉक करने के लिए काफी सारे फ्री प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से जो ये पॉपअप्स के थ्रू ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं हम उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट इज वी हैव टू रेगुलरली स्कैन आवर कंप्यूटर फॉर एनी स्पाईवेयर। स्पाईवेयर्स क्या होते हैं? स्पाईवेयर्स एंड एडवेयर्स एक टाइप ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं जिसके थ्रू हमारे ऊपर अटैकर्स स्पाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज अवॉइड डाउनलोडिंग फ्रॉम द अननोन सोर्सेज। हमें अननोन सोर्सेज से बिल्कुल भी डाउनलोड प्रोग्राम्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे डाउनलोड्स में कुछ हिडन कंटेंट या हिडन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। ऐसे ही ईमेल अटैचमेंट्स जो भी अननोन सेंडर्स से आए हैं उनमें हार्मफुल वायरसेस हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें उन्हें भी ओपन नहीं करना चाहिए। Next, we have to keep our passwords secrets. So we have to check them regularly. We have to use a mixture of numbers and characters. Alphanumeric passwords basically easily track नहीं कर सकता है कोई भी cyber attack, right? Also be aware of the government measures जो कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स निकाले हैं टू टैकल दी ऑनलाइन फ्रॉड्स। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द साइबर क्राइम, लाइक इशू ऑफ द अलर्ट्स, एडवाइजरीज वो लोग रेगुलरली इशू करते रहते हैं, ट्रेनिंग करते रहते हैं लॉ इन्फोर्समेंट पर्सोनल की, ताकि उनको नए नए क्राइम्स के बारे में, नए नए जो फ्रॉड्स आ रहे हैं उनके बारे में पता चल सके।
एंड हम www.cybercrime.gov.in के ऊपर भी जा सकते हैं टू रिपोर्ट एनी कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दी ऑनलाइन फ्रॉड। अब ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है, ये काफ़ी टाइप के फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे कि हमने फिशिंग, स्मिशिंग, विशिंग, सिम क्लोनिंग भी हो सकती है, इम्पर्सनेशन भी हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं। फर्दर जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए उसमें उन्होंने एस्टैब्लिश किया है NCCIIPC, जिसके हिसाब से जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर होती है। उसके अलावा ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिजिटल सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, दे हैव टू रिपोर्ट द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स टू द सर्टेन एक्सपीडिशियसली। Third is the Cyber Swachh Kendra, that is the Botnet Cleaning and Malware Analysis Center, which is set up by the government and it is launched for providing the detection of the malicious programs. And हमें ये provide करती है with free tools to remove such programs. Next is the issue of alerts. हमें alerts और advisories time to time government देती है on the crime, on the cyber crime website, ताकि हम aware रह सकें. नेक्स्ट इज द सिक्योर बैंकिंग एंड सिक्योर ATM टिप्स। सो काफ़ी सारी बैंकिंग टिप्स होती है नेट बैंकिंग जब भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे बचने के लिए, उससे सिक्योर रहने के लिए हमें क्या क्या टिप्स याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपनी ID पासवर्ड किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना है, अपने पासवर्ड को मेमोराइज करना है एज सून एज हम फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हैं। हमें इंटरनेट बैंकिंग को साइबर कैफेज में और या फिर पब्लिक वाईफाई के थ्रू यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि होटल एंड एयरपोर्ट्स पे। नेक्स्ट, हमें वर्चुअल कीबोर्ड फीचर्स का भी यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया था कुछ स्कैम्स ऐसे होते हैं जो की स्ट्रोक्स को पहचानते हैं हमारे। तो अगर हम कीबोर्ड यूज नहीं करेंगे तो हमारे की स्ट्रोक भी वो लोग पहचान नहीं पाएंगे। तो हमें वर्चुअल कीबोर्ड यूज करना चाहिए। लास्टली, हमें ऑलवेज क्रॉस चेक करना चाहिए कि जो नेट बैंकिंग का लास्ट लॉगिन हुआ था वो कब हुआ था, और हमें ऑथराइज अनऑथराइज लॉगिन्स को भी मॉनिटर करना चाहिए। अगर हम सिक्योर ATM बैंकिंग की बात करते हैं तो हमें पिन शेयर नहीं करना चाहिए, पिन रेगुलरली चेंज करना चाहिए, ATM से काफ़ी क्लोज खड़े होना चाहिए जो भी ATM मशीन होती है, और हमें शील्ड करना चाहिए जो भी कीपैड में हम एंटर कर रहे हैं पिन्स। और आसपास अगर हमारे स्ट्रेंजर्स है तो हमें उनसे भी बच के रहना है। स्ट्रेंजर्स की बिल्कुल हेल्प नहीं लेनी है अपने कैश को हैंडल करने के लिए, या फिर पिन एंटर करने के लिए, या फिर ATM कार्ड जो भी है यूज़ करने के लिए। जो भी ट्रांजैक्शन स्लिप हमारी होती है हमें उसको इमीडिएटली श्रेड करना चाहिए अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है तो, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन स्लिप में भी काफ़ी आपकी इंफॉर्मेशन रहती है। अगर हमारा ATM कार्ड कोई स्टोलन है या फिर खो गया है तो हमें उसको बैंक को इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। जब भी हम कोई चेक या फिर कार्ड ATM मशीन में डालते हैं तो हमें अपनी क्रेडिट एंट्री ज़रूर चेक करनी चाहिए आफ्टर अ कपल ऑफ डेज। और अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, अगर ज़्यादा अमाउंट हमारा डेबिट हो गया है तो हमें बैंक को रिपोर्ट करना चाहिए। हमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहिए बैंक के साथ, ताकि हमें अलर्ट्स जो भी एडवाइजरीज बैंक हमें सेंड करती है उससे हम अवेयर रह सके। लास्टली, अगर हमारा कार्ड ATM मशीन में फंस जाता है और या फिर कैश नहीं निकलता है तो हमें बैंक को इमिजिएटली कॉल करना चाहिए उस केस में। द लास्ट टॉपिक इज द रेमेडीज अवेलेबल इन केस ऑफ द ऑनलाइन फ्रॉड्स इन इंडिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो इसमें क्या है, हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स को, क्या क्या रेमेडीज हमें अवेलेबल है। तो अगर हम किसी भी फ्रॉड को विद इन 3 डेज रिपोर्ट करते हैं तो हमारे पैसे 10 दिन के अंदर अंदर हमें वापस से रीइम्बर्स बैंक कर देगा। 4 to 7 डेज में अगर हम विद इन रिपोर्ट करते हैं तो ये 3 टाइप्स की पेनल्टीज हमें देखने को मिलती है। और बियॉन्ड 7 डेज अगर हम लगाते हैं तो जो कस्टमर की लाइबिलिटी है वो इस बात पर डिटरमाइन होगी कि बैंक की पॉलिसी क्या है और बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो बोर्ड है, उसने क्या अप्रूव किया हुआ है। So that's it for today's video. Thanks for watching. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.